بہت بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر طرف سرسبز پہاڑ تھے اور ان کے دامن میں ایک بہت پرانا اور خوفناک جنگل تھا۔ اس جنگل کو لوگ کالا جنگل کہتے تھے۔ یہ نام اسے اس لیے ملا تھا کیونکہ یہاں کے درخت بہت اونچے اور گھنے تھے، ان کے پتے اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی بھی زمین تک نہیں پہنچ پاتی تھی، اور ہمیشہ ایک گہری تاریک خاموشی چھائی رہتی تھی۔ دن کے وقت بھی جو لوگ اس جنگل کے پاس سے گزرتے تھے ان کے دل دہشت سے دھل جاتے تھے، اور رات کو تو اس کا نام بھی زبان پر لانے سے لوگ ڈرتے تھے۔ اس جنگل کے بارے میں بہت سی عجیب کہانیاں مشہور تھیں۔ کچھ کہتے تھے کہ اس کے بیچ میں ایک ایسا جادوئی چشمہ ہے جس کا پانی پینے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور سب سے زیادہ مشہور کہانی یہ تھی کہ اس جنگل کے اندر ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے جو کسی پرانے بادشاہ نے دفن کیا تھا۔ یہ جنگل جیسے ایک راز تھا جس کے سینے میں بہت سی گہرائیاں تھیں۔ اسی جنگل کے قریب ایک گاؤں میں 3 لوگ رہتے تھے جنہیں سب چوروں کے نام سے جانتے تھے۔ ان کا کام ہی چوری کرنا اور لوگوں کو لوٹنا تھا۔ ان کے نام تھے رحمان، کلیم اور ناصر۔ رحمان ان سب میں سب سے بڑا تھا اور اس کا دماغ بہت تیز چلتا تھا۔ وہ چیزوں کو جلدی سمجھ جاتا تھا، لیکن اس کے دل میں دولت کا لالچ بہت زیادہ تھا۔ وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا تھا کہ کیسے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک رہتی تھی جو صرف پیسوں کو دیکھ کر آتی تھی۔ کلیم جسمانی طور پر بہت مضبوط اور بہادر تھا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ اسے اپنی طاقت پر بہت ناز تھا، لیکن وہ سوچنے سمجھنے میں تھوڑا کمزور تھا اور جلدی دوسروں کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ وہ طاقت سے ہر مشکل حل کرنا چاہتا تھا۔ ناصر سب سے چھوٹا تھا، وہ زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا اور بہت خاموش رہتا تھا، لیکن وہ بہت سمجھدار تھا۔ اس کی نظریں بہت تیز تھیں اور وہ لوگوں کے دل کی بات کو بھی چہروں سے پڑھ لیتا تھا۔ وہ حالات کو بہت گہرائی سے دیکھتا تھا اور ہمیشہ پرسکون رہتا تھا۔ یہ تینوں ایک ساتھ مل کر کام کرتے تھے، لیکن ان میں سے ہر ایک کے دل میں لالچ کا ایک چھوٹا سا بیج موجود تھا جو موقع ملنے پر بڑا درخت بننے کے لیے تیار تھا۔ ایک سرد رات جب وہ ایک بڑی چوری سے فارغ ہو کر اپنے چھپے ہوئے ٹھکانے پر بیٹھے تھے اور چوری کیے ہوئے مال کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، رحمان نے ایک قیمتی سونے کی انگوٹھی کو اپنی انگلی پر گھماتے ہوئے کہا، بھائیو، یہ چھوٹی موٹی چوریاں اب مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ہمیں کچھ بہت بڑا کرنا چاہیے، کچھ ایسا جس سے ہمیں زندگی بھر کام نہ کرنا پڑے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی آرام سے بیٹھ کر کھائیں۔ کلیم نے اپنی طاقتور مٹھی سے ایک لکڑی کا ٹکڑا توڑتے ہوئے کہا، ہاں، کوئی ایسا منصوبہ ہو جس میں خطرہ بھی خوب ہو لیکن اس کا مال اتنا ہو کہ ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکیں، کوئی ہمیں آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ ناصر، جو ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سب کی سن رہا تھا، اچانک اپنا سر اٹھا کر بولا، کالا جنگل۔ رحمان اور کلیم دونوں ایک دم چونک گئے اور ان کی ہنسی فوراً رک گئی۔ ان کے چہروں پر ایک لمحے کے لیے خوف آ گیا۔ رحمان نے ہنستے ہوئے کہا، ناصر، کیا تمہیں بخار ہو گیا ہے؟ کالا جنگل؟ وہاں تو جن بھوت رہتے ہیں، لوگ تو دن میں بھی اس کے قریب نہیں جاتے، تم وہاں جانے کی بات کر رہے ہو؟ ناصر نے سنجیدگی سے رحمان کی طرف دیکھا اور کہا، کچھ دن پہلے مجھے ایک بہت بوڑھا فقیر ملا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کالا جنگل کے بالکل بیچ میں ایک بہت پرانی گپھا ہے۔ وہ گپھا جو صدیوں پہلے ایک طاقتور بادشاہ نے اپنا سارا سونے کا خزانہ چھپانے کے لیے بنوائی تھی، اور اسی گپھا کے اندر وہ پراسرار چشمہ بھی ہے۔ وہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک سچی بات ہے۔ خزانے کا نام سنتے ہی رحمان اور کلیم کی آنکھوں میں لالچ کی چمک واپس آ گئی، اور اس بار یہ چمک پہلے سے بھی زیادہ تیز اور اندھی کر دینے والی تھی۔ کالا جنگل کا خوف ایک دم ان کے دماغ سے نکل گیا۔ رحمان نے اپنے ہونٹوں کو تر کرتے ہوئے کہا، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا وہاں اتنا بڑا خزانہ ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز میں ہوس تھی۔ ناصر نے سر ہلایا اور کہا، فقیر نے بہت یقین سے کہا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس گپھا کا راستہ آسان نہیں،
और खजाने तक सिर्फ बहादुर दिल वाले ही पहुंच पाते हैं जो अपनी जान की परवाह न करें। कलीम, जो हर खतरे से खेलने को तैयार रहता था, फौरन जोश में आ गया। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। बस फिर किया, हम कल ही सुबह काला जंगल की तरफ निकलेंगे। ये एक सुनहरी मौका है, इसे हाथ से जाने नहीं देंगे। रहमान ने नासिर की तरफ देखा। इसे लगा कि नासिर कोई मजाक कर रहा है, लेकिन नासिर की आंखों में सच्चाई थी जो झूठे इंसान में नहीं होती। आखिरकार लालच जीत गया और रहमान ने भी जाने की हामी भर ली। ठीक है, अगर इतना बड़ा खजाना है तो हमें एक बार किस्मत जरूर आजमानी चाहिए। इस फैसले के साथ ही उनकी किस्मत का एक बड़ा और खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। अगली सुबह सूरज निकलने से भी पहले, जब आसमान में अभी भी तारे चमक रहे थे, तीनों अपना सारा सामान लेकर तैयार थे। उनके पास कुछ मजबूत रस्सियां, जमीन खोदने के लिए बेलचे, पत्थर तोड़ने के लिए हथौड़े, कुछ खाने पीने का सामान और सबसे अहम, उनके दिलों में भरी हुई बेकाबू हवस थी। उन्होंने खामोशी से गांव छोड़ा और काला जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल के किनारे पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी खामोशी ने अपने घेरे में ले लिया। हवा में एक अजीब सी सुनसान वीरानी थी, जैसे किसी तूफान से पहले सब कुछ पुरसुकून होता है। दरख्त इतने घने थे कि आसमान का नीला रंग भी सब्ज और सिया नजर आ रहा था। जैसे ही उन्होंने जंगल के अंदर पहला कदम रखा, वहां का दर्जा हरारत अचानक कम हो गया और एक अजीब सी ठंडक उनके जिस्मों में फैल गई। ये ठंडक सिर्फ मौसम की नहीं थी, बल्कि एक पुरस्रार खौफ की भी थी। उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर कदम पर कांटेदार झाड़ियां उनका रास्ता रोकती, जिनसे उनके हाथों और पैरों पर जख्म लग जाते। सदियों पुराने दरख्तों की फैली हुई मोटी जुड़ें उन्हें बार बार ठोकरें लगवाती और जमीन पर गिरे हुए सूखे पत्ते उनके कदमों तले चुरमुराते हुए एक अजीब और डरूनी आवाज पैदा करते। जंगल में उन्हें कई बार जंगली जानवरों की गराहटी सुनाई दे, हरनों के भागने की आवाजें और परिंदों की डरूनी चीखें उनके सरों पर मंडलाती रहती। कलीम, जो हमेशा अपनी बहादुरी की बातें करता था, अब उसके चेहरे पर परेशानी और डर साफ नजर आने लगा था। रहमान अगरचे लालची था, मगर उसकी उम्र और तजर्बे ने इसे समझा दिया था कि ये रास्ता आसान नहीं, बल्कि मौत का जाल भी हो सकता है। नासिर सबसे खामोश था, लेकिन इसकी तेज नजरें हर तरफ, हर पत्थर और हर दरख्त को देख रही थीं। वो छोटे छोटे निशानात को भी पहचान रहा था जो उन्हें रास्ता ढूंढने में मदद दे सकते थे। इसकी खामोशी में एक बहुत गहरी सोच थी। घंटों की बहुत मुश्किल और थका देने वाली मुसाफत के बाद, जब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी और उनके जिस्मों में दर्द उठने लगा था, वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां दरख्तों की जुड़ें इतनी ज्यादा फैली हुई थीं कि चलना तकरीबन नामुमकिन हो रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई नजर न आने वाली हस्ती उनका पीछा कर रही है। अचानक नासिर रुक गया और उसने एक बहुत घनी झाड़ियों के झुंड की तरफ इशारा किया। मुझे लगता है कि गप्फा इसी तरफ है। मैंने फकीर से सुना था कि गप्फा एक ऐसी जगह पर है जहां दरख्तों की जुड़ें एक दीवार बना देती हैं और जहां ऐसा लगता है जैसे ये मौत का रास्ता है। इसकी आवाज में एक अजीब सी यकीन दहानी थी। रहमान और कलीम ने इसकी बात पर गौर किया और उन्हें भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने झाड़ियों को हटाना शुरू किया तो वाकई उन्हें एक पुरानी काई में छपी हुई गप्फा का बड़ा दरवाजा नजर आया। गप्फा का दरवाजा इतना पुराना था कि इसे देखकर लगता था जैसे ये सदियों से जमीन का हिस्सा है। इसके अंदर से एक अजीब सी ठंडक और बोसीदा मिट्टी की बो आ रही थी जो उनके दिलों में मजीद खौफ पैदा कर रही थी। रहमान ने अपनी टार्च निकाली, जो बहुत कमजोर सी रोशनी दे रही थी और सिर्फ चंद कदमों को ही रोशन कर पा रही थी। अंधेरा बहुत है, बहुत एहतियात करनी होगी। एक गलत कदम और हम सब खत्म हो सकते हैं। वो एक एक करके गप्फा के अंदर दाखिल हुए। गप्फा का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था और नीचे की तरफ जाता था। दीवारों पर अजीब व गरीब निशानात बने हुए थे और पुरानी काई जमी हुई थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में दाखिल हो गए हों।
जैसे जैसे वो अंदर जाते गए रास्ता तंग होता गया और हवा मजीद ठंडी होती गई। उनके कदमों की आवाज और उनकी सांसों के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता था। उनके दिलों में खजाने की उम्मीद और नामालूम खौफ की जंग जारी थी। काफी देर चलने के बाद जब उन्हें लग रहा था कि ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, उन्हें गफ्फा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में रोशनी का एक हल्का सा किनारा नजर आया। ये रोशनी कुदरती नहीं लग रही थी, बल्कि किसी अंदरूनी चमक की तरह थी। वो इस तरफ बढ़े। वहां गफ्फा के बीच में एक बहुत बड़ी सी जगह थी। इस जगह के बिल्कुल दरमियान में एक चश्मा था जिसका पानी शीशे की तरह साफ और चमकदार था। इस चश्मे से एक हल्की सी रोशनी फूट रही थी जो पूरे माहौल को एक पुरजलाल और पुरअसरार रंग दे रही थी। इस चश्मे के करीब हर तरफ सोने के ढेर लगे थे। सोने के सके पहाड़ों की तरह बुलंद थे। हीरे जवाहरात से भरे संदूक हर तरफ बिखरे हुए थे और कीमती नवादरात हर तरफ पड़े थे। ये इतना बड़ा खजाना था जिसका उन्होंने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। सोने के सिक्कों के पहाड़, चमकते हुए हीरे, याकूत और जमुर्द से सजे हार और रेशम के कपड़ों में लिपटे कदीम मुजस्समे। ये एक ऐसी दौलत थी जो दुनिया के किसी भी बादशाह को शर्मिंदा कर दे। तीनों की आंखों में लालच का समंदर तेजी से बहने लगा। उनके चेहरों पर एक दीवानगी सी छा गई। वो खुशी से पागल हो गए और जोर जोर से चीखने लगे। रहमान ने सबसे पहले एक सोने की ईंट उठाई और उसकी चमक देखकर जोर से हंसा। एक ऐसी हंसी जिसमें जीत और हवस दोनों शामिल थे। हम अमीर हो गए, हम माला माल हो गए। अब हम दुनिया के हर बादशाह से ज्यादा अमीर हैं। कलीम ने एक बड़ा हीरा उठाया और उसकी चमक में अपना चेहरा देखा। अब हमें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, हम आजाद हैं। अब कोई हमें रोक नहीं सकेगा। इसकी आवाज में एक वहशियाना जोश था। नासिर खामोश था, लेकिन इसकी नजरें सबसे पहले इस चश्मे पर थीं। वो इसकी पुरअसरारियत को महसूस कर रहा था, जैसे इस चश्मे में कोई बहुत गहरा राज छुपा हो। इसे ये दौलत अचानक एक अजीब सी बेहिस्सी से देखने लगा, जैसे इसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उन दोनों की नजरों से छुपा हुआ था। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो इसे ये दौलत हासिल करने से रोक रही थी। लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है, ये इस वक्त वाज़ेह हुआ जब रहमान के दिमाग में एक बहुत बुरा ख्याल आया। इसने अपने दिल में सोचा, अगर ये सारा खजाना सिर्फ मेरे पास आ जाए तो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। इन दोनों को इसमें से हिस्सा देने की क्या जरूरत है? ये सब मेरा होना चाहिए। इसने कलीम की तरफ देखा जो हीरे चुनने में मसरूफ था। इसकी आंखों में गहरी हवस भरी थी। फिर नासिर की तरफ देखा जो अभी भी चश्मे को घोर रहा था। रहमान के चेहरे पर एक मक्काराना और बुरी सी मुस्कुराहट फैल गई। रहमान ने एक चालाक अंदाज में कहा, भाइयों, हम बहुत थक गए हैं और भूख भी बहुत लगी है। ये खजाना इतना बड़ा है कि हम इसे एक साथ नहीं ले जा सकते। यहां से बहुत दूर एक गांव है। कलीम, तुम जाकर कुछ खाने पीने का सामान और एक मजबूत रस्सी ले आओ ताकि हम ये खजाना बांध कर आसानी से ले जा सकें। ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। कलीम को भी बहुत भूख लगी थी और वो फौरन तैयार हो गया। ठीक है, मैं अभी जाता हूं, लेकिन खबरदार, कोई भी इस खजाने को हाथ नहीं लगाएगा मेरी वापसी तक। ये हमारा मुश्तरका माल है और हमें इसकी हिफाजत करनी है। रहमान ने मुस्करा कर सर हिलाया। फिक्र मत करो, हम यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम्हारे बगैर हम एक पैसा भी नहीं छुएंगे। इसके दिल में एक मकरू मंसूबा बन चुका था, एक ऐसा मंसूबा जो इसकी अपनी फितरत की तारीकी को जाहिर कर रहा था। कलीम के जाते ही रहमान ने नासिर की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। नासिर, तुम इस चश्मे के बारे में क्या सोच रहे हो? क्या वाकई ये अमृत का चश्मा है? नासिर ने कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह बहुत पुरअसरार है। रहमान ने नासिर के कंधे पर हाथ रखा और एक गहरी साजिशी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा सुनो, कलीम बहुत ज्यादा हिस्सा मांगेगा जब वो आएगा। वो ताकतवर है और हो सकता है कि वो हम पर गालिब आने की कोशिश करे। क्या ख्याल है अगर हम इसे खत्म कर दें? हम दोनों ये सारा खजाना आधा आधा बांट लेंगे।
आधी दौलत मेरी और आधी तुम्हारी। हम दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे और कोई हमसे मुकाबला नहीं कर सकेगा। नासिर कुछ देर खामोश रहा। इसने रहमान की आंखों में झांक कर देखा, जहां लालच की गहराई एक बेपनाह तारीकी में बदल चुकी थी। इसे रहमान की बातों में बुरी सच्चाई नजर आई, लेकिन इससे भी ज्यादा इसे अपनी ही फितरत का अक्स नजर आया। नासिर ने आहिस्ता से सर हिला दिया। ठीक है, जैसा आप कहीं। रहमान ये सुनकर बहुत खुश हुआ। इसे लगा कि नासिर उसकी बातों में आ गया है और वो अब अकेले खजाने का आधा हिस्सा हासिल कर लेगा। वो अपनी किस्मत पर खुश था कि इसे इतना आसान साथी मिल गया। दूसरी तरफ कलीम जब गांव की तरफ जा रहा था, इसके दिल में भी लालच की आग एक तूफान की तरह भड़क रही थी। इसने सोचा, ये सारा खजाना मुझे ही मिलना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को खत्म कर दूं तो मैं अकेला ही अरबपति बन जाऊंगा और किसी को हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। मेरी ताकत और अक्ल मुझे इसमें कामयाब करेगी। वो गांव से खाने का सामान लेकर आया और उसने खाने में खुफिया तौर पर जहर मिला दिया। इसका इरादा था कि वापस जाकर वो दोनों को जहर आलूद खाना खिलाएगा और जब वो मर जाएंगे तो सारा खजाना इसका होगा। इसने सोचा कि इसकी ताकत और होशियारी इसे इस काम में कामयाबी दिलाएगी। इसके कदम तेजी से गफ्फा की तरफ बढ़ रहे थे और उसके दिल में एक शैतानी मुस्कुराहट थी। जब कलीम वापस आया, रहमान और नासिर ने इसे आते देखा। रहमान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और नासिर के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई खास तासुर ना था। जैसे ही कलीम गफ्फा के दरवाजे पर पहुंचा और अंदर आने लगा, रहमान हमला करने के लिए तैयार था। जब अचानक नासिर ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए और ऊंची आवाज में बोला, रुको, ये हम क्या करने वाले हैं? ये सब क्या है? रहमान और कलीम दोनों नासिर की तरफ हैरत से देखने लगे। रहमान ने कहा, क्या हुआ नासिर, तुम्हारा क्या मतलब है? नासिर की आंखों में अब कोई हवस चालाकी नहीं थी, सिर्फ एक गहरी पशेमानी और हक की रोशनी थी। इसने गफ्फा में मौजूद चमकदार खजाने और फिर अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखा, जिनके चेहरों पर लालच और शक की परछाइयां थीं। हमने एक दूसरे के खिलाफ बुरे मंसूबे बनाए हैं। मैंने रहमान को कलीम के खिलाफ उकसाया और मुझे यकीन है कि कलीम भी हमारे खिलाफ कोई बुरा मंसूबा लेकर आया होगा। ये खजाना हमें तकसीम नहीं कर रहा, ये हमें अंदर से खोखला कर रहा है। हमने जिंदगी भर जो चोरियां की वो हमें इस हद तक ले आई हैं कि हम अपने ही दोस्तों को मारने पर तैयार हो गए हैं। क्या यही हमारी दोस्ती है? क्या यही जिंदगी का मकसद है? नासिर की आवाज में ऐसी सच्चाई और दर्द था कि रहमान और कलीम दोनों वहीं रुक गए। उनके हाथों से वो चीजें गिर गईं जो उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने का सोचा था। कलीम के हाथ से जहर आलूद खाने का पैकेट गिर पड़ा और रहमान ने अपने हाथ में पकड़ा पत्थर जोर से जमीन पर फेंक दिया। उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए सदमा और शदीद शर्मिंदगी उभर आई। रहमान ने कलीम के गिरते हुए पैकेट की तरफ देखा, फिर नासिर के चेहरे को देखा। इसने सर झुकाते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो नासिर। मेरे दिल में भी यही बात थी कि कलीम को खत्म करके सारा खजाना हासिल कर लो। ये लालच हमें अंधा कर चुका था। कलीम ने शर्मिंदगी से अपना सर झुकाया। इसकी आंखों में आंसू थे जो बरसों से किसी जुर्म पर ना निकले थे। और मैं भी तुम्हारे लिए जहर लेकर आया था। हम कितने गंदे इंसान बन गए थे। तीनों कुछ देर खामोशी से खड़े रहे। उनके सामने सोने के पहाड़ थे, हीरे चमक रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा हो चुका था। उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को पहचान लिया था। यह खजाना उनकी दोस्ती को खत्म कर सकता था, उनकी जानें ले सकता था और उनके दिलों को मजीद तारीक कर सकता था। रहमान ने एक गहरी सांस ली। हमने अल्लाह ताला की नाशुक्री की, इसीलिए हम चोरी और बुराई के रास्ते पर थे। अल्लाह ने हमें यह खजाना इसलिए दिखाया है ताकि हम तौबा करें और सीधे रास्ते पर आ जाएं। ये एक निशानी है।
کلیم نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ آج سے ہم ایک نئے راستے پر چلیں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پھر کبھی کسی کا برا نہیں کریں گے۔ ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمارا اصلی امتحان ابھی باقی ہے۔ ہم یہ خزانہ یہیں چھوڑ دیں گے، یہ ہمارے کام کا نہیں۔ اس کی حفاظت اللہ ہی کرے گا جس کی یہ امانت ہے۔ ہم اپنی محنت سے کمائیں گے اور اپنی زندگی میں اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھیں گے۔ سچی دولت یہ نہیں ہے جو ہم نے یہاں دیکھی، بلکہ وہ ہے جو اللہ ہمیں حلال طریقے سے دے۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب لالچ نہیں تھا، بلکہ گہری دوستی، پشیمانی اور نیک نیتی کی چمک تھی۔ انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر اللہ سے سچے دل سے توبہ کی۔ انہوں نے خزانے کو وہیں چھوڑ دیا، ایک بھی چیز نہ اٹھائی، اور گپھا سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جنگل سے باہر نکل آئے اور پھر کبھی چوری یا لوٹ مار نہیں کی۔ رحمان، کلیم اور ناصر نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ انہوں نے شہر میں جا کر محنت کی، دیانت داری سے کمایا اور سادگی سے زندگی گزاری۔ انہوں نے اپنی کمائی کا کچھ حصہ غریبوں میں بانٹا اور لوگوں کی دل کھول کر مدد کی۔ جب بھی انہیں مشکلات کا سامنا ہوتا، وہ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے اور اس کے فیصلوں پر راضی رہتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے علاقے میں نیک اور سچے دوستوں کے طور پر مشہور ہو گئے۔ کالا جنگل کا خزانہ وہیں کا وہیں رہا، لیکن اس خزانے نے 3 چوروں کو ہوس کے انجام کے بجائے حق کے راستے پر چلنے کا اور اللہ پر یقین رکھنے کا ایک انمول سبق سکھایا۔ یہ کہانی آج بھی ان لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے جو دولت کی ہوس میں اپنی انسانیت، اخلاقیات اور دوستوں کو بھول جاتے ہیں کہ واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے اگر دل میں ایمان اور توبہ کی سچی نیت ہو۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ لالچ انسان کو تباہی کی طرف دھکیلتا ہے، لیکن توبہ اور اللہ پر کامل بھروسہ اسے صحیح راہ دکھا سکتا ہے اور اس کی زندگی بدل سکتا ہے۔ انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، اور اگر وہ غلط راستے پر ہے تو اسے پلٹنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ سچی دولت مال و متاع میں نہیں، بلکہ ایمان، قناعت جو ہے اس پر خوش رہنا، دیانت داری اور اچھے اخلاق میں ہے۔ اللہ پر کامل بھروسہ اور یقین ہی انسان کو حقیقی سکون اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت اور خوشحالی آتی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ اپنے اس کہانی سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ابھی ہمارے چینل کہانیوں کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کا ایک لائک اور ایک شیئر ہماری بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ شکریہ۔